There are also elastic filaments made of titin, spanning from the Z discs to the thick filament and then continuing on, acting as the core of the thick filament. Now let's zoom in even further on these two main types of filaments. Myosin is a protein with two globular heads pointing outwards and a long tail which contributes to the structure of the filament. The heads are the site of all the activity, since there are ATP binding sites as well as actin binding sites, meaning this is where the thick and thin filaments will interact by making cross bridges. It's important to note the lack of myosin heads in the center of the sarcomere, just as there also are no thin filaments. Speaking of those, as we said, they are made predominantly of actin, and two actin filaments will twist together to form the backbone of the thin filament. Each actin subunit has an active site where myosin can bind, and when a muscle fiber is relaxed, these are blocked by spiraling strands of tropomyosin. There is also troponin, a globular complex of 3 polypeptides, one of which binds to actin, one of which binds to tropomyosin, and one of which binds calcium. Beyond this, we must be aware of the sarcoplasmic reticulum, a series of tubules that surround each myofibril. These regulate levels of calcium, which is needed for muscle contraction through storage and release. This structure includes the T-tubules, which sit at each A-band, I-band junction, encircling each sarcomere and helping signals reach every region of the muscle cell. Now that we've examined each structural component, let's describe how everything works using the sliding filament model of contraction. This says that when the nervous system stimulates muscle fibers, the myosin heads on the thick filaments will interact with the binding sites on the actin subunits. These attachments will form and break several times as the thick filaments pull the thin filaments in towards the center of the sarcomere, thus pulling the Z discs towards the M line. The I bands shorten and the H zone disappears. The overall effect is that the A bands from adjacent sarcomeres get closer together, so the entire muscle cell will shorten. This is the mechanism by which muscles contract. Now the question is, how is all of this activity initiated? As we said, this begins with a signal from the nervous system. We will examine. बेटा यहाँ तक तो आप लोगों ने कल पढ़ लिया था पूरा, और अब हम ये देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट कौन कर रहा होता है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज अब फोकस कीजिएगा कि अब आगे ये मैकेनिज्म का जनरेशन कैसे होगा। इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा इसे आगे हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जाऊंगा जहां से इस मैकेनिज्म को हम और बेहतर वे से भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो प्रीवियस क्लास के हवाले से तो आप प्लीज पूछिएगा ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर पिछला कोई चीज ऐसी है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही तो आगे जाने से फिर मजीद कंफ्यूजन होगी। सो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये आप 30-35 सेकंड्स पे आपके लिए वेट कर रहा हूँ। 30 सेकंड्स पे अगर आपने कोई सवाल करना हो पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। सर ये मसल स्ट्रोक क्या होता था और वो मतलब फिजिकली उस वक्त मसल की क्या पोजीशन होती है मसल स्ट्रोक जब होता है? जी बेटा, मसल स्ट्रोक असल में है क्या? मसल स्ट्रोक कहते हैं पावर स्ट्रोक, जो मैंने कल नाम दिया था। पावर स्ट्रोक एंड मसल स्ट्रोक एक ही चीज होती है। जब आपका जो मायोसिन है उसका हेड जब एक्टिन के अंदर फिट हो जाता है और फिट होने के बाद जब पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है तो वो अपने आप को टिल्ट करता है। इसकी मिसाल आप यूं लो जैसे कि आपने अपना हाथ ऊपर उठाया है और आपकी जो रेस्ट है, आपकी जो कलाई है, हाथ पूरा हाथ नहीं सिर्फ रेस्ट, उसको अगर आप मूव करते हो और आपका नीचे बाजू मूव ना कर रहा हो, ये इस तरह मूवमेंट होती है हेड की कि इसका जो फिलामेंटस पार्ट है मायोसिन का, यानी जो इसका फाइब्रस पार्ट है वो फिक्स रहता है और इसके ऊपर जो हेड होती है वो मूव कर रहा होता है। तो जब पीआई मूव करते हैं और वो हाईली एनर्जाइज्ड जो हेड होता है वो मसल को खींचता है
और जब वो वहां से एक्टोमाइसिन ब्रिज टूट के वापस आ जाता है तो हम कहते हैं ये एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। तो एक स्ट्रोक का या पावर स्ट्रोक का मतलब होता है मायोसिन हेड का एक्टिन के साथ अटैच करके उसको पुल करना। मैं ये कहूंगा अटैच, पुल, डिटैच, रिलैक्स, ये पूरा एक पावर स्ट्रोक हुआ। दोबारा बता रहा हूं, अटैच, पुल, डिटैच एंड चेंज इन पोजीशन, वापस आ जाना। तो ये पूरा एक पावर स्ट्रोक है या इसको मसल स्ट्रोक कहते हैं। सारा ओके सर, सही है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, कर रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। वैसी ही है जैसे कि एक साइनैप्स। नो क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है। चले, अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं और वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा प्लीज फोकस कीजिएगा बेटा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कोई नई चीज नहीं है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वैसी ही है जैसे कि एक साइनैप्स। फर्क ये है कि साइनैप्स जो है वो दो न्यूरॉन के दरमियान बनता है, यानी एक न्यूरॉन अराइव कर रहा होता है, एक वहां से जा रहा होता है, तो एक राउंड अबाउट बीच में बनता है। साइनैप्स जो है वो न्यूरॉन्स के बीच में बनता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नाम देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, it's a type of synapse which is formed between the neuron and muscle cell। तो मसल फाइबर यानी मसल सेल और एक न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है, जो कि एक छोटा सा क्लिफ्ट होगा, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बिल्कुल वही कहानी अब दोबारा रिपीट हो रही है, जो आपने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पर है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में आपने पढ़ा था कि एक होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो वो चीज यहाँ पर भी है। फर्क ये है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो नर्वस सिस्टम की है, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी है? मसल की है, यानी सार्कोलीमा होगा। तो एक तरफ अगर आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो दूसरी तरफ सार्कोलीमा होगा। क्या क्या इवेंट्स होंगे वहां पर, कैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा, उसके लिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आगे लेके जा रहा हूं। तो न्यूरोमस्कुलर सबको समझ आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। So neuromuscular junction is a type of junction between the nerve and muscle fiber, and it behave like the synaptic cleft। एसिटाइलकोलिन यहाँ भी रिलीज होंगे और आगे जाके वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करेंगे। सो प्लीज फोकस कीजिएगा। In that system in detail a bit later, but for now we can just examine the ये देखिए बेटा, ये इन्होंने एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया है और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये जो आपको येलो डार्क पोरस पार्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली है क्या? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। बल्ब नजर आ रहा है, ये येलो वाला जो बड़ा पार्ट है, जैसे लगता है इसको किसी टेबल के ऊपर किसी पार्ट को रखा गया है। तो ये जो नीचे सरफेस है जिसको मसल से शो किया जा रहा है, ये सार्कोलीमा है, यानी ये मसल फाइबर का मेम्ब्रेन है। और ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं जिसको एक ब्लू पार्ट ने सराउंड किया हुआ है पूरा, ये क्या है? ये प्री साइनेप्टिक बल्ब है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया आपको अंदर नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा पोरस पार्ट शो किया है इन्होंने। ये जो पोरस पार्ट शो किया है वो इसलिए शो किया है क्योंकि यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होती है और बहुत सारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। तो ये जो रेड रेड छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं टेबल के ऊपर बहुत सारे, ये इन्होंने असल में न्यूरोट्रांसमीटर को शो किया है जो यहाँ से रिलीज होगा। फर्क ये है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो साइनैप के मुकाबले में ज्यादा ज्यादा नैरो जंक्शन होता है। तो आपको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई जंक्शन है ही नहीं और ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी ऐसा लगता है जैसे टेबल के ऊपर कुछ रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बॉटम में, यानी दोनों के जहां सरफेस टच हो रहे हैं, इनके बीच में एक बारीक सा गैप है। ऐसा नहीं है कि दोनों टच है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में गैप है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के दरमियान जंक्शन। येलो पार्ट क्या है? प्री साइनेप्टिक बल्ब। और नीचे जो सरफेस नजर आ रहा है इसको मसल से शो किया है, ये मसल फाइबर का मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूरो सार्कोलीमा कहते हैं।
चले आगे चलते हैं। interface between the nervous system and a skeletal muscle. This is called the neuromuscular junction. Each muscle fiber has one, and these sections अब देखिएगा इन्होंने डायग्राम को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इसने सर्कल के अंदर बंद किया हुआ है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ना बेसिकली सरफेस का जो मेम्ब्रेन होती है हमारा ये ज्यादातर ये जो बल्ब होते हैं ये उस जगह पे कांटेक्ट में होते हैं जहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसने ऊपर एक टी ट्यूब्यूल दिखाया है जो सर्कल में बंद किया गया है, तो वो टी ट्यूब्यूल के ऊपर ही फिट हुआ है। यानी आप अगर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक बल्ब एक जंक्शन के अंदर फिट हुआ है जिसको उन्होंने शो किए हैं ऊपर एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब क्या है? प्री सिनेप्टिक बल्ब जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये जो नीचे बड़ा सेल नजर आ रहा है ऑफ कोर्स ये मसल फाइबर है यानी मसल सेल है। और आपको इस उन्होंने शो किया है सार्कोप्लाज्म भी शो किया है, टी ट्यूब्यूल को भी शो किया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी शो किया है और सार्कोलीमा को भी शो किया है। तो सार्कोलीमा के ऊपर जो लेजन्स है या डिप्रेशंस है, ये वो डिप्रेशन है जहाँ वो शो कर रहा है टी ट्यूब्यूल को। मतलब ये हुआ कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसमें मेम्ब्रेन का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जहाँ पे लेजन होगा या जहाँ पे डिप्रेशन होगा और जहाँ पे टी ट्यूब्यूल जनरेट होगा। तो टी ट्यूब्यूल के थ्रू जाके आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा। called axon terminals are nearly touching the muscle fiber, separated only by a thin space called the synapse. जी बेटा, अब देखें ये है आपका एक और क्लोज व्यू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो आप सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तो ऊपर देखिएगा साइनेप्टिक वेसिकल से स्टार्ट लेते हैं बेटा। एक ही चीज को देखते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। तो वेसिकल के अंदर क्या चीज होती है? एसिटाइल खोलिन होती है, नीचे दिखाया गया है। और ये हमेशा कहाँ होता है? प्री सिनेप्टिक बल्ब के अंदर होते हैं। फिर इन्होंने साइनेप्टिक क्लिफ्ट को शो किया है। तो साइनेप्टिक क्लिफ्ट वो भी नजर आ रहा है। और आपको पता है कि साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो है वो किस चीज में होती है? साइनेप्स के अंदर होती है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये भी एज अ साइनेप्स के तौर पे काम कर रहा होता है। तो सिनेप्टिक क्लिफ देख सकते हैं। अच्छा, फिर आप एक्सॉन टर्मिनल देखिएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। सार्कोलीमा का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। बराबर में देखो टी ट्यूब्यूल जा रहा है। इसी तरह पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो इस वक्त किसकी है? मसल की है, जो कि सार्कोलीमा है। माइटोकॉन्ड्रिया शो किए गए हैं। फिर आपने देखा एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर यहाँ पर भी लगे होते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ़ोल्डेड होती है। मसल्स का जो मेम्ब्रेन है यानी सार्कोलीमा, वो बहुत ज़्यादा उस जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ोल्डेड होते हैं, जहाँ वो रिसीव करती है एसिटाइलकोलिन को। और आप देखते हैं कि इन फ़ोल्ड्स के अंदर बहुत सारे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं, जिसको उन्होंने ब्लू से शो किया हुआ है। और ये जो रेड कलर के सर्कल छोटे-छोटे एक्सोसाइटोसिस से रिलीज़ हो रहे हैं, ये एसिटाइलकोलिन है, जो इनके साथ बाइंड होते हैं। आपको पता है बाकी मैकेनिज्म के क्या होता है? जब ये बाइंड होते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा? ये चैनल खुलेंगे और जब ये चैनल खुलेंगे तो अंदर आएँगे सोडियम। सोडियम अंदर आते ही जाके किसको ट्रिगर करेंगे? जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए बढ़ा देंगे और कैल्शियम आना शुरू कर देगा। फिर आपको पता है कि वो कैल्शियम क्या करता है, कल आपने पढ़ा था, वो कैल्शियम जाके किसके ऊपर अटैच होता है? ट्रोपोनिन के ऊपर। और ट्रोपोनिन क्या करता है? ट्रोपोमाइसिन को हटा देता है, एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाते हैं। फिर क्या होता है था? मायोसिन हेड जाके एक्टिन के अंदर जुड़ जाएँगे, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगी और फिलामेंट स्ट्रोक डेवलप हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी स्टोरी आपस में इस तरह कनेक्टेड है। अभी जो आप देख रहे हैं, इस वक़्त आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक नर्व सेल से यानी एक न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल है, वो कैसे ट्रांसफर होगा एक मसल फाइबर के अंदर। तो जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम ईपीएसपी का नाम दे रहे हैं या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा बेटा। अगर कोई सवाल करना है तो प्लीज़ पूछिएगा। राइट। Cleft, where the muscle produces junctional folds
within the postsynaptic membrane. The axon terminal has lots of synaptic vesicles, which are like little bubbles containing acetylcholine, which is a neurotransmitter. When a nerve impulse reaches the end of an axon by a mechanism we will discuss later, the axon terminal will release acetylcholine into the synaptic cleft. The junctional folds contain acetylcholine receptors, so these will bind to the approaching acetylcholine, which causes a conformational change. This protein will then act. Now look at this. ये वो चैनल आपको दिखा रहे हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप अपने राइट साइड पे देखिए जहाँ पे आयन चैनल ओपन कहा है, उसके ऊपर देखिए एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ है। इसका मतलब है ये चैनल अगर आप लेफ्ट पे देखते हैं जिस पे क्लोज लिखा है तो ये चैनल बंद रहते हैं, ये खुलते नहीं है। और बराबर में अगर इसके टॉप पे देखें तो अब बाहर वाला साइड जो है वो क्या है, वो क्लिफ्ट है और अंदर वाला साइड जो है वो मसल का सार्कोप्लाज्म है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है जो कि मसल का सेल का मेम्ब्रेन है और इसके अंदर प्रोटीन चैनल है, रेड से शो किया है, जो कि बंद है, इस वक्त क्लोज है। इसको खुलवाने के लिए हमें इन आयंस की जरूरत पड़ेगी जो कि ऊपर इन्होंने ट्रायंगल शेप में दिखाए गए हैं। आई मीन आयन कह रहा हूँ, एसिटाइलकोलिन की जरूरत पड़ेगी। ये एसिटाइलकोलिन जब इस पे लगेंगे तो तब जाके ये चैनल खुलेंगे और जब ये चैनल खुलेंगे तो ये जो सोडियम आयंस उसने ऊपर शो किए हैं, आई मीन येलो कलर में सर्कल में, ये यहाँ से गुजरेंगे। तो अभी जो कि इसके लिए चैनल बंद है, यहाँ से गुजर नहीं सकते, लेकिन जब ये एसिटाइलकोलिन इसके टॉप पे लगते हैं जो कि आपके राइट पे नजर आ रहा है, तो ये चैनल खुल जाता है और देखिए इसमें से इन्होंने सोडियम को गुजरते हुए दिखाया है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि सोडियम का अंदर जाना क्या होता है, ईपीएसपी या एक्शन पोटेंशियल या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। An ion channel, which allows for sodium ions to enter and potassium ions to leave, although not in equal number. Sodium will cross. तो कहते हैं कि जैसे आपने कहा था कि जब भी हम कहेंगे कि सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं और पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल। आपने पढ़ा था कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो उसमें सोडियम जो है वो अंदर आ रहा होता है और पोटेशियम बाहर जा रहा होता है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी ज्यादा सोडियम अंदर और कम पोटेशियम बाहर, जिससे इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। Membrane in greater quantity, and this affects the membrane potential, or the potential difference across the membrane. For more information on electric potential, check out my physics tutorial on this subject. Otherwise, we just need to understand that the way that जी बेटा। सर इसमें वीडियो में भी बोला ना कि पोटेशियम आयन अंदर आ रहा होता है और सोडियम आयन बाहर, तो ये इक्वल नंबर्स में नहीं आ रहा था, इसका मतलब क्या है? तुबा ये तो हम जब रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे उस पे तो मैंने बताया था कि जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं। जी और सर, फिर याद आ गया मुझे। और फिर मैंने डिफ्यूजन के अंदर कहा था कि सोडियम के ज्यादा चैनल जो है वो पोटेशियम के ज्यादा चैनल खोले होते हैं और सोडियम के कम चैनल खोले होते हैं। तो ये वो सोडियम पोटेशियम पंप वाली मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। positive and negative charges are distributed within a structure can be a driving force for a particular process. Prior to the opening of the ion channels, the inside of the cell was more negatively charged than the outside, but as sodium ions enter, depolarization will occur. This causes other nearby sodium channels to open, and more sodium ions will enter. तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक सोडियम चैनल के साथ एक बार ऐसा होगा तो वो आगे दूसरे सोडियम को खुद ब खुद स्टिमुलेट करते हैं। इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, यानी एक चैनल दूसरे चैनल को स्टिमुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सोडियम आयन खुद ब खुद आ रहे होते हैं या हर जगह पे एसिटाइलकोलिन नहीं आते। एसिटाइलकोलिन मेम्ब्रेन के सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आएंगे जहां पे आपने फोल्डेड पार्ट देखे थे अभी, लेकिन एक जगह पे एसिटाइलकोलिन आने के बाद उस मेम्ब्रेन का अगला पूरा पार्ट खुद ब खुद जाके डीपोलराइज होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
following the electrochemical gradient. Wind, show me where to go. Once a particular threshold voltage is reached, this will generate an action potential. Sodium can now diffuse into the cell anywhere along the membrane. While this is happening, an enzyme in the synaptic cleft called acetylcholinesterase will break down a तो देखिए वही बात वहाँ दोबारा आ गई, जैसा अभी पहले भी पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है वो एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम की जरूरत पड़ती है कि वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर दे। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को उस वक्त तक नहीं छोड़ सकता जब तक वो ब्रेक नहीं होगा दो चीजों में, एसीटेट में और खोलिन में। तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ये अपने राइट साइड टॉप पे देखें, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज विल ब्रेक डाउन ACH, यानी ACH को तोड़ेगा, एसिटाइलकोलिन को तोड़ेगा दो चीजों में, एसीटेट में और खोलिन में। और ये दोनों एक्टिव साइट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, इसलिए वो एक्टिव साइट को छोड़ देंगे। और जब एक्टिव साइट को छोड़ देंगे तो इसका मतलब है दोबारा सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल गुजर गया। ये दोनों एसीटेट और कोलिन वापस एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये हमारा जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें वापस आएंगे। और इस दौरान दोबारा मैं वही बात करूंगा कि एक साइनेप्टिक डिले कॉज होगा, उस वक्त मसल को दोबारा आप स्टिमुलेट नहीं कर सकते। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का रोल वही है जो कि एक साइनेप्स का रोल होता है। तो इसलिए इन्होंने नीचे लिखा है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्लोजेस, सर जब वो बंद होंगे तो अब मजीद सोडियम अंदर नहीं जा सकेगा। choline, and the ion channel closes, preventing further muscle contraction until another nerve impulse arrives. But the action potential will continue to propagate along the sarcolemma and down the T tubules, which Look at this. It says like कि अब चूंकि जंक्शन के ऊपर तो और एसिटाइलकोलिन बेशक नहीं आ रहे और एसिटाइलकोलिन क्लोज भी और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स क्लोज भी हो गए, मजीद सोडियम नहीं आ रहे, लेकिन जो सोडियम ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी पॉजिटिविटी किसके थ्रू जाएंगी? टी ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रांसफर होगी। यानी एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते जाते, जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन फोल्ड होती है अंदर की तरफ, और इस फोल्ड मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल अंदर की तरफ मूव करेंगे। अंदर की तरफ जाते जाते ये किस जगह को टच करेंगे? ये जाएंगे बेटा सीधा सीधा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और वहां से कैल्शियम को रिलीज करके दिखाएंगे, और फिर आपको पता है कैल्शियम का काम क्या होता है। So let's see. opens up calcium ion release channels, which we will discuss in a moment. Finally, after the depolarization wave has completely propagated, repolarization will begin due to the change. अब देखिए ये चीज वही दोबारा आ गई है। 1 पे आप देखिएगा रेस्टिंग पोटेंशियल था, यानी मसल सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, और जब हमने रेस्टिंग से नंबर 2 पे जाते हैं डिपोलराइजेशन पे, तो असल में क्या हो रहा है इस वक्त? तो नंबर 1 पे नीचे लिखा है मोर सोडियम आउटसाइड द सेल, मोर पोटेशियम इनसाइड द सेल, ACH बाइंडिंग। अभी ACH जो है वो बाइंडिंग कर रहेंगे, अभी किया नहीं है इन्होंने, अभी रिलीज नहीं हुए। नंबर 2 पे लिखा है सोडियम गोज इनटू द सेल, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। 3 पे क्या हो रहा है? वापस यानी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज आया, उसने इसको तोड़ा, सोडियम चैनल बंद हो गए। Sodium channel closed and potassium channels open, negative charge restored in a cell. ये वही ग्राफ है जो कि मैंने आपको पहले समझाया था। In charge density. Potassium channels will now open, and potassium ions that are more highly concentrated within the cell will diffuse out of the muscle fiber, which restores negative charge inside, and the sarcolemma goes. Further efflux of potassium, redistribution of ions and resting potential restore. मैंने आपसे कहा था कि अगर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ चले जाएं और मेम्ब्रेन को -70 पे लेके आए, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करे, तो ये एक इशारा होता है कि अब इनको ये एक स्टिमुलस होता है कि अब सोडियम पोटेशियम पंप को दोबारा ओपन करना है और नॉर्मल चीजें रिस्टोर करनी है।
तो बच्चा देखो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, सोडियम अगर अपनी पीक पे जाते हैं तो वो पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करते हैं, और पोटेशियम अगर बहुत पीक पे जाते हैं यानी हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, तो ये कॉज करते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल को, सॉरी यस, सोडियम पोटेशियम पंप को, कि वो ओपन हो और रेस्टिंग पोटेंशियल वापस रिस्टोर हो जाता है। तो ये तो पुरानी कहानी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। back to normal. At this point, the muscle fiber can be stimulated again if another impulse arrives. So we can see that charge distribution and electric potential are key concepts here. But how does that relate to muscle contraction? Well, the action potential generated will initiate. ये देखिए, ये एक्शन पोटेंशियल नंबर 2 जो लिखा है ना ऊपर, 2 वाइट किया हुआ है, इनको एक्शन पोटेंशियल प्रोपिगेशन शो कर रहा है, जो कि यहाँ से आ रहे हैं। नंबर 1 पे आप देखिएगा क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन आ रहे हैं, उन्होंने सोडियम को अंदर किया, सोडियम प्रोपिगेट होके टी ट्यूब्यूल से होके आ रहे हैं, और कहाँ पहुंच रहा है, ये देखिएगा, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्नल स्पेसेस होती है, तो ये सिस्टर्ना जो इन्होंने लाइट ग्रीन से लाइट ब्लू से शो किया है, ये सिस्टर्ने है, एक सिस्टर्ना है जो कि हॉलो ट्यूब्स होते हैं, और इनके हॉलो तो खैर नहीं होती, इसके अंदर फ्लूइड होता है, और इसमें देखिएगा कैल्शियम स्टोर होता है, अंदर कैल्शियम का स्टोर बना हुआ है। तो जब ये एसिटाइल कोलिन जब ये सॉरी सोडियम आयंस की प्रोपिगेशन से एक्शन पोटेंशियल नीचे रीच होके आता है, तो ये क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। किसकी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए बढ़ा देगा। और अगर आप नीचे देखिएगा तो ये जो व्हाइट एरोज शो कर रहे हैं और रेड सर्कल शो किए हैं, ये बता रहे हैं कि कैल्शियम जो है वो डिफ्यूज आउट हो रहा है बाहर की तरफ। अब ये कैल्शियम आयन कहाँ जाएगा, अब देखिएगा। Excitation contraction coupling. As we said, the propagation of the action potential causes a rise in levels of calcium in the cytosol, and this is what causes the filaments to slide. Let's recall that when a muscle cell is relaxed, tropomyosin blocks. देखो वही बात पे आ गए वापस, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन सब यूनिट्स। कल बाद आपने पढ़ा था कि ये जो आपको इस डायग्राम के अंदर जो पर्पल डायग्राम है, सर्कल है, ये आपके वो है एक्टिन फिलामेंट्स है, और एक्टिन के ऊपर दोनों को इन्होंने ट्रोपोनिन बनाया हुआ है जो कि थोड़ा डिफरेंट कलर में है, और जो बैंड्स नजर आ रहे हैं, स्ट्रिप्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रोपोमायोसिन है। इस वक्त देखो बेटा, आपको कहीं भी बाइंडिंग साइट नजर नहीं आ रहा। बाइंडिंग साइट जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगा हुआ था, कल आपने पढ़ा था, वो यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि वो स्ट्रिप के नीचे है, ये जो पट्टी गई है ट्रोपोमायोसिन की, इसके नीचे है, सारे छुपे हुए हैं। अब जब कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच होगा तो वो इस पट्टी को स्लाइड कर देंगे और एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर देंगे, जिसपे फिर हमारे पास रिएक्शन मायोसिन के हेड आके अटैच होंगे। मैं दिखा देता हूँ। The myosin binding sites on the actin subunits. But as ये देखिएगा, कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन एंड अलाउ फॉर मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग। ये देखिए ना, बाइंडिंग साइट नजर आ गई ना, इसकी पट्टी थोड़ी सी सरक गई है, दूसरी तरफ मूव कर गई है, ट्विस्ट हो गई है। तो पहले ये पट्टी नीचे थी, पहले ये पट्टी उस तरफ थी जहाँ पे ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, बाइंडिंग साइट जिसको इन्होंने लेबल किया है। तो इन बाइंडिंग साइट के ऊपर ये स्ट्रिप थी, लेकिन जब कैल्शियम आया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, तो उसने इस पट्टी को थोड़ा सा स्टिल्ट किया, उसको ट्विस्ट किया, और एक्टिव साइट्स को इन्होंने एक्सपोज कराया। अब इस एक्टिव साइट के ऊपर मायोसिन का हेड आके अटैच हो सकता है, जिससे फिर हम कहेंगे एक्टोमायोसिन ब्रिज बना। एक्टोमायोसिन ब्रिज का मतलब मायोसिन हेड और एक्टिन का बाइंडिंग साइट। more and more calcium ions become present, these will bind to troponin, and once two ions bind, it will change shape, which will push tropomyosin off of the myosin binding sites, making them available for cross-bridge cycling, the process we mentioned before. In this process, the myosin. ये देखिएगा, the myosin heads use ATP स्प्लिट होगी पहले to change conformation। conformation का मतलब है इसका हेड ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाइंड्स के साथ अटैच होगा, and repeatedly pull on the actin filaments to cause contraction। repeatedly, बार बार, ये चीज बहुत तेजी से चल रहा होता है। पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए फॉस्फेट का रिलीज होना जरूरी होगा,
यानी पहले एटीपी जो ऑलरेडी हेड पे लगी होती है, वो एटीपी जब तक हेड पे लगी रहेगी, हेड के अंदर एनर्जी नहीं आएगी, वो नीचे की तरफ पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। जो ही इसकी एटीपी टूट जाएगी, एटीपी और एटीपी को तोड़ता कौन है? एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे अराइव हो रहा होता है। तो जब ये एटीपी टूटेगी, हाइड्रोलाइज होगी एडीपी में और फॉस्फेट में, इस एडीपी और फॉस्फेट के अपने अपने एक्टिव साइट्स होते हैं हेड के ऊपर। जब ये दोनों एडीपी और फॉस्फेट जो कि एटीपी से रिलीज हुए हैं, फॉस्फेट के मायोसिन के हेड पे अटैच होते हैं, तो ये इसको एनर्जाइज करता है और इसको अपनी पोजीशन पे लेके आता है और यहाँ ये अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद पीआई को यहाँ से रिलीज होना होता है। जो ही पीआई रिलीज होता है तो ये जो हेड है ये पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, टिल्ट होता है, फर्दर आगे की तरफ मूव करता है। कल मैंने बताया था कि इसकी जो नीचे फाइबर है, आई मीन जो फाइब्रस पार्ट है मायोसिन का, वो मूव नहीं करता, वो बिल्कुल सीधा अपनी पोजीशन पे रहेगा। इसकी जो हेड है, जैसे कि आप अपने रेस्ट को, अपने कलाई को इस्तेमाल करते हो, अपने रेस्ट को इस्तेमाल करते हो, लेकिन अपने आर्म को नहीं हिलाते। एक बंदा ने अपने हाथ ऊपर उठाया हुआ है और उसका जो बाजू है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो कलाई है, ये इसका जो रेस्ट है, वो उसको आगे पीछे कर रहा होता है। तो इस तरह इसकी मूवमेंट हो रही है। और जब पीआई यहाँ से रिलीज होगी तो स्ट्रोक जनरेट होगा। उसके बाद जब एडीपी रिलीज होगी, इसका मतलब एडीपी की रिलीज हो रही थी, एक और एटीपी आएगी, और जब वो एटीपी इसके साइट के साथ बाइंड होगी तो उसको दोबारा अनएनर्जाइज करके, इसकी एनर्जी को दोबारा कम करके वापस नॉर्मल पोजीशन पे एनर्जाइज करके बाइंड कराता है और एटीपी का अराइवल होना उसको वहां से रिलीज करा देता है। मैं दिखा देता हूँ। Heads will pivot and bend, pulling the actin filament along and using ATP in the process. The two positions possible. अभी देखिए ये पोजीशन देखिएगा, एक्टिन फिलामेंट किस तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 पे देखिएगा एरो दिखाया है कि एक्टिन फिलामेंट की मूवमेंट जो है वो इस तरफ होती है। याद रखिएगा मायोसिन मूव नहीं कर, मायोसिन जो है वो अपनी जगह नहीं चेंज करते, वो अपनी जगह पे ही है, सिर्फ उसका हेड आगे पीछे मूव करते हैं और आगे वो एक्टिन फिलामेंट को पुल करते रहते हैं। तो पावर स्ट्रोक के लिए क्या हुआ, पीआई और एटीपी ये दोनों यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस से हुए, एटीपी बाइंडिंग रिटर्न हेड टू रिस्टोर स्टेट, वापस अपनी पोजीशन के लिए। 3 चीजें देखो, एटीपी का तोड़ना, थर्ड स्टेप पे देखो एटीपी का तोड़ना क्या करते हैं, इसको कॉक्ट करके एनर्जाइज करके इसको ऊपर उठाएंगे और नंबर 3 से फौरन आ जाए नंबर 1 पे। अच्छा, जब नंबर 3 से नंबर 1 पे आते तो ये जब बाइंड होगा, क्योंकि ये साइकिल है पूरा चल रहा है, बाइंडिंग के बाद क्या होगा, पीआई रिलीज होगी, इसको आगे की तरफ पुल करेंगे और फिर एक एटीपी आएगी जो इसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगी। For the heads, allow it to pull, detach, change position, bind, pull, detach, and so forth many times until contraction is complete. इस बात को दोबारा सुनो, क्या कहते हैं, पहले क्या होगा, एनर्जाइज होगा, यानी पहले क्या होगा, एटीपी आएगी, डिटैच, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, अगेन एनर्जाइज, अटैच, पुल, डिटैच। आपको वो तरतीब बता रहे हैं। Detach, change position, bind, pull, detach, and so forth many times until contraction is complete. As calcium levels deplete, troponin returns to its original shape. Tropomyosin blocks. ये देखिएगा, अब कैल्शियम आयन इंट्रोड्यूस्ड, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, और जब कैल्शियम डिप्लेटेड, रिलैक्सेशन होगी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई तो, और अब हमने मसल को रिलैक्स करके छोड़ देना है, कॉन्ट्रैक्शन को रोक देना है, तो फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन यहाँ से कम होंगे, कैल्शियम जब डिप्लेट होंगे वापस जाएंगे। अब ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि वो कैल्शियम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन रिमूवल ऑफ कैल्शियम होगा। कैल्शियम जब अपनी वापस आएंगे तो इसका मतलब है कि मसल फिर, अगर कैल्शियम अपना एक्टिव साइड छोड़ देंगे जो कि ट्रोपोनिन के ऊपर है, तो वापस ट्रोपोमाइसिन एक्टिव साइड को बाइंड कर देंगे, हाइड कर देंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी। Actin's binding sites once more, and the muscle fiber relaxes. There is a lot more to discuss. So this is the story of the muscle contraction. Yes बेटा, आपने कोई सवाल करना हो तो प्लीज पूछिएगा। और अभी मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रहा हूँ जो आपकी बुक का ही डॉक्यूमेंट है, और उसमें अब आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ रही होगी।
calcium ion into the neuron. देखो, the calcium ion causes vesicles containing acetylcholine to fuse with the presynaptic membrane. ये नजर आ रहा है steps wise. Acetylcholine is released and diffused across the synaptic cleft. ठीक है. अच्छा, फिर इस क्लिफ्ट में आ गई 4 पे. नंबर 5 पे देखिएगा क्या कह रहे हैं. Acetylcholine molecule bind with the receptors in the sarcolemma. यहाँ रिसेप्टर होंगे, causing to open channel protein for sodium ions. Sodium ion diffuse in through the open channel in the sarcolemma. T-tubule के थ्रू जाएंगे अब. This depolarizes the membrane and initiate an action potential which spread along the membrane. Right. The depolarization of the sarcolemma spread down T-tubule. उसके बाद क्या होगा? Channel proteins for calcium ion open and calcium ion diffuse out of the sarcoplasmic reticulum. And finally, calcium ion bind to troponin. Tropomyosin moves to expose myosin binding sites on the actin filaments. Myosin heads form cross bridges with the filament and the sarcomere shorten. So वही स्टोरी जो अभी आपने पूरी पढ़ी डिटेल में, बहुत ब्रीफली यहाँ सीक्वेंस में दिया गया है, and I think it will be very fruitful to go through it, inshallah. And you, yes, beta. So did you get the concept of muscle contraction? आप लोग काइंडली जरा एक्नॉलेज कीजिएगा. दिस इज द एंड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल. सो हमने शुरू में मसल को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी 3 टाइप्स पढ़े. उसमें जो हमारे सिलेबस का पार्ट था वो स्ट्राइटेड मसल्स थे, जिसको आपने डिटेल में पढ़ा. हमने फेसिकल से स्टार्ट लिया. फेसिकल था, फिर उसमें हमने मसल फाइबर को स्टडी किया, जो कि मसल का एक सेल था. उसके अंदर फिर हमने मायोफिब्रिल्स पढ़े, जिसमें थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट्स थे. उनकी अरेंजमेंट पढ़ी कि वो किस तरह अरेंज होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को पढ़ा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोमेयर, उनकी पूरी डिटेल कल की क्लास में हुई थी. आज हमने कॉन्ट्रैक्शन के मुतालिक पढ़ा कि किस तरह एक्शन प्रोटेक्शन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सोडियम आयंस मूव करते हैं इनसाइड, और वो फिर किस तरह परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, permeability of the membrane of the sarcoplasmic reticulum for calcium ion बढ़ाते हैं. कैल्शियम आयन फिर आके ट्रोपोनिन के साथ कैसे अटैच होते हैं, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को इन्वर्ट करके एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर लेते हैं, जिसके साथ एक्टोमाइसिन ब्रिज बनती हैं. और फिर वो एटीपी का क्या रोल था और इस तरह किस तरह कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है. दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ मसल स्ट्रक्चर एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा. यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes. Is it clear now? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. अगला टॉपिक हमारा है जो कि हार्मोनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसिस जिसको हम कहते हैं, अ फीमेल साइकिल, अ फीमेल पीरियड. एंड उसमें चूंकि 4 हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उसकी एक समरी है. पहले हम ये पढ़ेंगे कि फॉलिकल सेल्स जो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, और एक ओवरी सेल्स की किस तरह रिप्रेजेंटेशंस होती है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. तो कुछ चीज़ें हैं बुनियादी जो कि इस साइकिल से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर अगले जो हमारी क्लास होगी वेडनेसडे से, फिर हम फिजिकल क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ेंगे, आगे परस्यू करेंगे, क्योंकि आज ये ख़त्म नहीं होगा. तो प्लीज़ स्टे विद मी. आई एम जस्ट गोइंग टू share a screen with about the menstrual cycle. It will take a few moments. Please stay with me.
जी बेटा, सॉरी, वेलकम बैक। थोड़ा सा वीडियो को टाइम लगा। अच्छा, मैं अभी इस वक्त तो अब जो मेंसेस साइकिल का जो टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं फिजिकल आपके साथ पढ़ा लूँ। तो उसकी जगह में एक और टॉपिक जो अभी रहता है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो उसके अंदर सॉरी नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल है प्लांट्स के अंदर, उसमें वेनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल है। एक प्लांट है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ये, इसको प्लीज फोकस कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरह नर्वस सिस्टम प्लांट्स के अंदर काम कर रहा है। एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को इंजेस्ट करता है। इस पे एक छोटी सी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, सो प्लीज स्टे विद मी। सो किस तरह प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होती है, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है वीनस फ्लाई ट्रैप। और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है टेस्ट बर्ड कि उनके अंदर किस तरह हमारी ब्रेन किस तरह टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो ये दो टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, ये मुस्तकिल तौर पे कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और समझ लो कि आप अपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट क्लोज कर चुके हो। आपके सिलेबस के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक में हम यूजुअली फिजियोलॉजी पढ़ते हैं शुरू में, जो टोटल आपने पढ़ा फ्लाई ट्रैप। हम इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर से नया बायोलॉजी, एडवांस बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके साथ सबसे पहले एक वेनस फ्लाई ट्रैप का एक डायग्राम शो शेयर कर रहा हूँ, और फिर इसकी एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे यूट्यूब से कि वो किस तरह इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। एंड देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट बड एज वेल। सो प्लीज स्टे विद मी and I'm going to share screen with you. Look at this. This is the diagram of the Venus flytrap. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या एडाप्टेशन है, खास चीजें क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं। यस, सबसे पहले तो आप इनके दोनों लीव्स के ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे इन स्पाइक्स की या इनके एक पर्टिकुलर नाम अभी मैं बताऊंगा आपको। ये इनके डिजाइन कुछ इस तरह बनी हुई है कि जब ये बंद होगा तो इनके गैप में ये वाला स्पाइक और इनके गैप में ये वाले स्पाइक आपस में फिट होते हैं। जैसे कि आप दोनों हाथ बंद करते हैं, उनकी उंगलियां एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, इस तरह ये बाकायदा एक दूसरे के अंदर बंद होते हैं। राइट। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि इनके जो इनर सरफेस है ये कॉन्वेक्स होता है। आप अगर देखें तो ये कॉन्वेक्स यानी बाहर की तरफ बल्ज हुआ है, और जब ये बंद होता है तो ये कॉन्केव होते हैं। जब ये अंदर की तरफ मूव करेंगे तो उनकी दोनों दीवारें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब बल्जिंग और फिर उसके बाद कॉन्केव हो जाना। अच्छा, और ये जो इनके लिफलेट्स हैं ये एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं। तीसरी बात अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नेक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक शुगरी सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये अडेप्टेशन बता रहा हूँ आपको। और एक और चीज जो आप देख रहे हैं वो है इसका डार्क कलर, रेड कलर। रेड कलर के मुतालिक आप ऐसी कलर है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अट्रैक्शन के लिए इसका कलर जो है रेड है। नेक्टर मौजूद है और इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है। तो एक किस्म का जो सेंट टाइप खुशबू होती है, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इनके ऊपर आप देखते हैं सेंसरी हेयर लगे हैं। ये देख रहे हैं, ये हेयर जो वहाँ पे आपको हेयर समझे या इसको कांटे समझे, बहुत हल्के हल्के हेयरी टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और इन्हीं के अंदर सारा कमाल होता है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, अगर इनसे इंसेक्ट टच होगा तो फिर जाके ये अपना शेप चेंज करता है। आई मीन अगर कोई इंसेक्ट आता है और एक बार टच होता है, फर्स्ट टच पे ये बंद नहीं होता, और अगर 25 सेकंड्स के अंदर दोबारा इंसेक्ट इससे टच होता है तो फिर ये बंद होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है अगर एक बार टच होगा तो ये बंद नहीं होगा। इसकी वजह ये होती है कि कभी अगर कोई बारिश हो रही है या फॉर एग्जांपल कहीं हवा चल रही है, कोई एयर पार्टिकल है, कोई मतलब डस्ट पार्टिकल इनके साथ टकराएगा, तो ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बंद करने में और फिर दोबारा ओपन होने में इसको बहुत टाइम लगता है। इतने आसानी से ये दोबारा खुलता नहीं है।
जब ये बंद हो जाता है तो बाज़ औक़ात इसको रीओपन होने में कई दिन लग जाते हैं, 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इसका बिकॉज़ जब ये बंद होता है तो ये बहुत आराम-आराम से इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है और इतनी जल्दी ये दोबारा ओपन नहीं होता। तो इसलिए एक तो ये बात याद रखिए कि जो एडाप्टेशन है कि इनकी जो हेयर है, उनको कंसेक्यूटिव एक्शन पोटेंशियल चाहिए होती है, ट्रिगरिंग 2-3 बार मल्टीपल हो, तब जाके ये क्लोज़ होगा, अदरवाइज़ ये इतनी आसानी से बंद नहीं होता। हाँ, एक बात और ज़रूर है, वो ये है कि अगर कोई एक इंसेक्ट एक वक़्त में 2 हेयर को एक साथ टच करे, तो भी जाके ये फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। क्योंकि 2 हेयर का टच करने का मतलब उसी के बराबर है कि आपने एक हेयर को या एक स्पाइक को 2 बार टच किया। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे, क्योंकि बंद मैंने जैसे आपसे कहा कि बंद होने में ये काफ़ी एनर्जी खर्च करता है। फिर एक और बात देखिएगा कि इनके ये जो सेंसरी हेयर है, इनमें डिस्टेंस बहुत है, वाइड है एक-दूसरे से। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई छोटा-मोटा इंसेक्ट्स है जो कि क्राउलिंग कर रहा है इनके बीच में, तो वो इनसे टच ना हो। इसलिए कि अगर उनसे वो टच होगा तो वो खुराक इनके लिए काफ़ी नहीं होता। अगर वो बंद हो जाता है तो वो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो क्राउलिंग कर रहा होता है, उससे इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसलिए अगर कोई बड़ा इंसेक्ट है या फ्लाई वगैरह, बीज़ वगैरह है, तो वो जब यहाँ बैठेंगे तो उनका थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। वो जब यहाँ बैठेंगे तो वो दोनों हेयर को एक साथ टच करेंगे, जिससे इसकी सेंसेशन डेवलप होगी और ये फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके साथ पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में डिस्कस करूँगा और फिर मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाऊँगा एंड देन वी विल मूव टू टेस्ट पार्ट। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ आप सबको पहुँच रही है? ठीक है। सो चलिए अब इसको थोड़ा रिटन फॉर्म में पढ़ लेते हैं, इसके डिस्कशंस कर लेते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप से पहले हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट्स। प्लीज़ फोकस कीजिएगा। Plant cells have electrochemical gradient across their cell surface membrane in the same way as in animal cells. जिस तरह हमारे यहाँ voltage difference, potential difference होते हैं, इस तरह plants में भी होता है. They also have resting potential that is triggered when the membrane is depolarized. मेरे ख्याल में ये सारी बातें आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है. The depolarization results not from the influx of positively charged sodium ions, but from the outflow of negatively charged chloride ions. तो ये पहला डिफरेंस अगर आप चाहें तो इसको साथ साथ में नोट करते जाएं. प्लांट सेल्स का जो डिपोलराइजेशन होगी यानी एक्शन पोटेंशियल होगी वो सोडियम चैनल की वजह से नहीं होती, बल्कि क्लोराइड चैनल्स के ओपन होने से और क्लोराइड आयन के बाहर जाने से होती हैं. क्लोराइड आयन जब बाहर जाएंगे तो इंटरनल साइटोप्लाज्म पॉजिटिव होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल. अच्छा, repolarization is achieved in the same way by the outflow of potassium ions. अच्छा, जब आप repolarization कराएंगे तो फिर आप पोटेशियम आयंस को बाहर फ्लो करवाएंगे तो इनर एनवायरनमेंट फिर नेगेटिव होगा, वापस repolarize होगा. Plants do not have specific nerve cells. Of course, nerve cell नहीं होते, but many of their cells transmit waves of electrical activity that are very similar to those transmitted along the neurons of animals. तो अगरचे हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इस तरह प्लांट्स में नहीं होता. लेकिन प्लांट्स के अंदर चार्ज पोलराइजेशन यानी चार्ज डिफरेंस का यानी पोटेंशियल की स्टोरी जरूर होती है और उनमें बहुत सारे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन बाकायदा ट्रेवल करती हैं, अगरचे वो एक लंबे सेल्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए उसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल. अच्छा, the action potentials travel along the cell membrane of plant cells and from cell to cell through plasmodesmata. Another important point, या 2-3 पॉइंट जो आपके लिए टेक्निकल है वो याद रखते हैं. एक तो एक्शन पोटेंशियल किस तरह ट्रिगर होगा, क्लोराइड आयन के जाने से, ना कि सोडियम के आने से. रिपोलराइजेशन पोटेशियम आयन के जाने से, और ये तो खैर कॉमन है, उस पर भी यही था. इसी तरह एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल किस तरह करता है, न्यूरॉन के थ्रू नहीं करता बल्कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन.
जिस तरह आप लोगों ने मसल्स के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूरोमास्कुलर जंक्शन, वहां पर भी आपने देखा कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर हुआ था और वहां प्लाज्मोडेस्माटा के तौर पे टी टेब्यूल जो था वो प्लाज्मोडेस्माटा के तौर पे काम कर रहा था। तो ये बिल्कुल वैसी ही मैकेनिज्म यहाँ पर है, दैट आर लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। The action potential generally lasts much longer and travel more slowly than animals. Of course, अगर आप न्यूरॉन के थ्रू नहीं कर रहे हैं और मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं और फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएंगे और फिर सेल टू सेल जाएंगे तो सेल तो बहुत सारे हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी स्लो होगा एज कंपेयर टू एनिमल सेल। जी बेटा, यहाँ तक एक्नॉलेज कीजिएगा क्योंकि अभी मैं आगे जा रहा हूँ बिजनेस फ्लाइट ट्रैक पे। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, अगर आप इसे एग्जामिनर पूछे कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन प्लांट्स एनिमल के साथ कंपेयर करो तो क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने आ गए, ज़हीन बताइएगा जरा मेजर पॉइंट्स, कुछ 3 पॉइंट्स पॉइंट आउट कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कंपेयर इन प्लांट्स विद एनिमल। सो 3 पॉइंट्स। यस सही। चलिए, तो पहला पॉइंट स्लो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन प्लांट्स के अंदर स्लो होंगे। दूसरा पॉइंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होगा, शाबाश, और एनिमल में किसके थ्रू होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। तो हो गए। तीसरा पॉइंट वेटिंग, तलाल तुम भी हेल्प कर सकते हो, तीसरा पॉइंट तुम बता दो। ज़हीन में कहा स्लो होगा, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होगा, शाबाश, क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स होगा, शाबाश, रिपोलराइजेशन थ्रू क्लोराइड आउटफ्लक्स होगा। नहीं 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 नहीं, रिपोलराइजेशन नहीं, डीपोलराइजेशन बेटा, ज़हीन डीपोलराइजेशन किसके थ्रू होगा, क्लोराइड आयन के थ्रू होगा इंस्टेड ऑफ। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ चीजें हुई। फिर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ेगी कि स्लो क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेल टू सेल आप जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू काफी टाइम लगेगा, न्यूरॉन लंबे सेल्स होते हैं इसलिए इसमें सिग्नल बहुत फास्ट जाएंगे। राइट, चले अब हम आगे चलते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ वीनस फ्लाई, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। The Venus flytrap is a carnivorous plant. Carnivorous आप जानते हैं इंसेक्ट्स खाने वाला प्लांट है। That obtains a supply of nitrogen compounds. नाइट्रोजन कंपाउंड्स मुरा अमाइनो एसिड्स, नाइट्रेट्स वगैरह। ज्यादातर ये प्लांट्स उन सॉइल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां नाइट्रेट्स की कमी होती है, तो वहां पे ये अपना खुराक एनिमल्स के थ्रू लेता है। अच्छा, इनके अपनी लीफ पे होते हैं जो कि इसमें नॉर्मल लीफ पे होते हैं सर, ये नहीं है कि इसमें यही यही लीफ होते हैं। By trapping and digesting small animals, mostly insects. अब देखिएगा, the specialized leaf is divided into 2 lobes either side of the midrib. डायग्राम देखिएगा एक बार फिर। ये इसका मिडरिब है, 2 लोब बने हुए हैं, दोनों कॉन्वेक्स है। तो जो मिडरिब है वो थोड़ा सा शुगरी सब्सटेंस शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, the specialized leaf is divided into 2 lobes either side of a midrib. The inside of each lobe is often red and has nectar secreting glands around the edges to attract insects. ये भी हमने पढ़ा। Each lobe has 3 stiff sensory hairs that respond to being deflected. Stiff sensory hairs कौन से वाले? ये stiff sensory hairs. अच्छा, इसके नंबर वैसे वेरिएबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, लेकिन जैसे अब यहाँ पे ये 3 है तो आगे एक और, ये 3 का एक पेयर होता है, मतलब ये पेयर्स में होंगे, जैसे यहाँ 3 है तो आगे एक और 3 होंगे, ये वेरिएबल होते हैं, लेकिन 3 का एक क्लस्टर बना होता है एक पर्टिकुलर स्पॉट्स के ऊपर। स्टिफ सेंसरी हियर जो कि डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी हिलते हैं, अगर कोई इंसेक्ट लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट होंगे, स्प्रिंग बैलेंस, जैसे एक बार स्प्रिंग बाउंस होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब देखिए, the outer edges of the lobes have stiff hairs, वो जो बाहर मैंने बताए थे जो फिंगर की तरह होते हैं, stiff hairs
that interlock आपस में, जैसे कि एक हमारे हाथ की उंगलियां एक से दूसरे के अंदर इन हो जाते हैं, that interlock to trap the insects inside. insect को अंदर की तरफ trap कर लेता है. The surface of the lobes has many glands that secrete enzymes for the digestion of trapped insects. ये एक और adaptation आ गई है क्योंकि इनके अंदर एक enzyme secrete करने की प्रॉपर्टी भी होती है और ये enzymes insects को digest करने के लिए इस्तेमाल होता है. The touch of a fly or other insects on the sensory hairs on the inside of the folded leaves of the Venus flytrap stimulate action potential that travel very fast across the leaf, causing it to fold over and trap the insect. चले, कैसे होगा ये? The deflection of a sensory hair, किसका? कहाँ से शुरू होगा? The deflection of a sensory hair activates, किस चीज को एक्टिवेट करता है? Calcium ion channels in cells at the base of the hair. ये देखिए, ये जो हेयर का बेस है ना, यहाँ पर, यहाँ जो सेल्स होते हैं, जब इसके साथ टच होता है, कोई इंसेक्ट टच कर लेता है, तो फौरन इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा, क्लोराइड आयन बाहर जाना शुरू करेंगे सेल से, और यूजुअली क्या होगा इसका रिस्पांस? कैल्शियम को ये ट्रिगर करेंगे. तो इसका मतलब है जिस तरह हमने प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर कैल्शियम की स्टोरी पढ़ी थी, तो तकरीबन यहाँ भी कहानी जो है वो कैल्शियम से शुरू हो रही है. तो ये क्या कह रहे हैं, प्लीज और कीजिएगा. अच्छा, calcium ion channels in cells at the base of the hair. These channels open so that calcium ions flows into, कहाँ? Flows into generate receptor potential. अच्छा जी, क्या होगा? These channels open so that calcium ions flows into, नहीं, ये थोड़ा सा सेंटेंस में शायद कुछ कमी तो नहीं है. The channels open so that calcium ions flows into generate a receptor potential. अच्छा, if two, चलिए खैर इसको आगे देखते हैं. If two of these hairs are stimulated within a period of 20 to 35 seconds, or one hair is touched twice within the same time interval, action potential travel across the trap. ठीक है. When the second trigger takes too long to occur after the first, the trap will not close, but a new time interval start again. समझ रहे हो? यानी अगर आपने एक बार इसको टच किया और टाइम शुरू हुआ, लेकिन आपने 1 मिनट गुजर गया और कुछ नहीं हुआ, दोबारा 1 मिनट के बाद टच करोगे तो फिर ये नया एक्शन पोटेंशियल काउंट किया जाएगा और दोबारा टाइम काउंटिंग शुरू हो जाएगी कि नेक्स्ट 25 सेकंड तक इसको ये टच कर दो. अच्छा, if a hair is deflected a third time, then the trap will still close. अच्छा, याद रखो बेटा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक इंसेक्ट, मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक इंसेक्ट है, वो यहाँ आता है और वो एक हेयर को टच करता है और फिर फौरन दूसरे को टच करता है, तो ये पूरा बंद नहीं होता. अगरचे ये फोल्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है. जब ये क्लोज होता है तो इंसेक्ट डरता है. जब वो डरता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है. बाहर निकलने के दौरान वो क्या करते हैं, बार बार इन हेयर से टकराता रहता है, और जितनी बार वो इन हेयर से टकराएगा उतना ये टाइट बंद हो जाता है. इसको दबा रहा होता है, इसको दबा रहा होता है. इसके जो इंटरलॉक लीफलेट्स है वो एक दूसरे की तरफ मजीद फिक्स होते हैं. तो यही वजह होती है कि इंसेक्ट्स को जब इसको आधा फोल्ड करके बंद कर लेता है तो ये कंप्लीटली एक साथ बंद नहीं होता, लेकिन जितना इंसेक्ट्स अंदर ज्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा उतना वो इन हेयर के साथ टच होता रहेगा और ये इनके जो इंटरलॉक होगा वो बहुत मजबूत होगा. अभी इसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको. अच्छा, सो फिर आगे. The time between stimulus and response is about 0.5 seconds. टाइम देखिएगा, जब ये इंसेक्ट इनके साथ टकराएगा तो जो स्टिमुलस पहुंचता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में सिर्फ 0.5 सेकंड्स लगते हैं, जबकि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो मिली सेकंड में होता था. It takes the trap less than 0.3 seconds to close and trap the insects. तो ये कुछ key points हैं which you have to keep in your mind. Right. Now, the lobes of the leaf bulge upward when the trap is open. मैंने क्या कहा था? यानी ये convex होते हैं, bulge होते हैं upward की तरफ जब ये open होता है. They are convex in shape.
and it is believed that the lobes rapidly change into a concave shape, bending downward. अंदर की तरफ जब move करेंगे तो उसके किनारे आपस में trap बंद हो जाएंगे. So the trap snaps shut, बंद हो जाएगा. This happens as a result of a release of elastic tension in the cell wall. यहाँ इनके इस leaf के जो cell walls होते हैं, उनके अंदर काफी flexibility होती है, elastic tension होता है. तो ये सारी cell wall की कहानी है. However, the trap is not completely closed at this moment. To seal the trap, it requires ongoing activation, वही मेरी वाली बात, of the triggers heard by the trapped prey. ये completely बंद नहीं होता, इसको complete बंद करने के लिए continuous ongoing activation चाहिए होती है, जो कि अंदर इनसे खुद ब खुद कर रहा होता है. Unless the prey is able to escape, it will further stimulate the inner surface of the lobe, thereby triggering further action potential. This forces the edges of the lobe together, sealing the trap to form an external stomach in which prey digestion occurs. So इसका मतलब ये है कि जब ये कॉन्केव हो जाते हैं और आगे वाला किनारा इसका बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इस कैविटी के अंदर एक इंटरनल स्टमक से मुराद ये है, एक्सटर्नल स्टमक से मुराद ये है कि उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और वो आके इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. In which prey digestion occurs. Further deflection of the sensory hairs by the trapped insects stimulate the entry of calcium ions into the gland cells. तो gland cells में जितने ज्यादा calcium ion अंदर आएंगे, उतना ज्यादा वो enzyme release करता जाएगा ताकि वो इसको digest कर सके. So calcium ions stimulate the exocytosis of vesicles containing digestive enzyme. इसका मतलब है जो enzymes आ रहे हैं वो exocytosis से आ रहे हैं, और आपने पहले भी पढ़ा था कि कैल्शियम आयन जहां भी होते हैं वो वेसिकल्स को रिलीज करा देते हैं. तो इसी तरह हमने एसिटाइल कोलिन के जो वेसिकल्स थे उनके लिए भी कैल्शियम का होना जरूरी था. इन अ सिमिलर वे टू देयर रोल इन साइनेप्सिस. तो साइनेप्सिस के अंदर हमने देखा था, लेकिन वहां वो एंजाइम नहीं था, वहां एसिटाइल कोलिन था, और यहाँ पे वो क्या रिलीज करा रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करा रहा है. So हम कह सकते हैं कि the traps stay shut for up to a week for digestion to take place. एक हफ्ते तक ये बंद रहेगा और digestion होती रहेगी. Once the insect is digested, the cells on the upper surface of the midrib grow slowly, so the leaf reopens, and tension builds in the cell walls of the midrib, so the trap is set again. ये थोड़ा सा गैर जरूरी हमें सेंटेंसेस है, इसको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा एनाटॉमी बताई है. एनाटॉमी मुराद है कि सेल वॉल के अंदर टेंशन कैसे क्रिएट होगा. यू विल नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारे पास. आपने सिर्फ जो मेन चीजें हैं वो इसकी एडेप्टेशन याद रखनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्टिफ हेयर्स क्या होते हैं, और इसका जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करने के लिए क्या कॉज होना चाहिए, और किस तरह ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, कौन से और वेसिकल्स किस थ्रू आते हैं. ये सारी टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए. और फाइनली ये वो सवाल है जो मैंने इसका निचोड़ निकाला था कि क्या एडाप्टेशन होती है वेनस फ्लाई ट्रैप की. So Venus flytrap have two important adaptation to avoid closing unnecessarily and wasting energy, ताकि खामखा फालतू में ये बंद ना हो और अपनी एनर्जी को जाया ना करें. First, the stimulation of a single hair does not trigger closure. This prevents the trap closing when it rains or when a piece of debris falls into the trap. तो ये खामखा फालतू में बंद नहीं होगा. Second, the gaps between the stiff hair that form the bars of the trap allow very small insects to crawl out, ताकि insects उसमें से आसानी से बाहर चला जाए. ठीक है, तलाल कह रहे हैं सब क्लियर है. बाकी लोग अगर कोई पूछना चाहे तो ओके. कम्युनिकेशन प्लांट्स के अंदर स्लो होंगे. दूसरा पॉइंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होगा. शाबाश. और यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 8 में हम यूजुअली फिजियोलॉजी पढ़ते हैं शुरू में, जो टोटल आपने पढ़ा, और उसके फौरन बाद फिर हम आते हैं एडवांस बायोलॉजी की तरफ, जो अभी इसके बाद शुरू होगी, और वो होगी इनहेरिटेंस से आगे इवोल्यूशन. तो आज समझ लो कि
कोशिश होगी हमारी कि इसको क्लोज कर सकें, ताकि फिर हम इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर से नया बायोलॉजी, एडवांस बायोलॉजी हम शुरू करेंगे। enriched with nutrients. जी बेटा, मेरा स्क्रीन नजर, ताकि इंसेक्ट्स उस पे से आसानी से बाहर चला जाए, छोटा इंसेक्ट्स होगा। द प्लांट वुड वेस्ट एनर्जी डाइजेस्टिंग अ वेरी स्मॉल मील। ये बता रहे हैं कि ये जो फिंगर वाले इसके स्टिफ हेयर है ना, इसके दरमियान में गैप होता है, और जब ये मुकम्मल सील इसलिए नहीं होता क्योंकि गैप में ये होता है कि ये छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं वो क्रॉलिंग करके उस पे से बाहर निकल सकते हैं, ताकि उस पे वो अपनी एनर्जी ज़ाया ना कर सकें। तो ये कुछ एडाप्टेशन है, और अभी मैं इसके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले अगर आप में से कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर हम इसकी 1 मिनट कह रहे हैं सब क्लियर है। बाकी लोग अगर कोई पूछना चाहें तो A lot of you have asked me to do a setup for carnivorous plants, with a lot of those requests being for Venus flytraps. I kept saying in comments that I would eventually do something with them, and the time has finally come. The reason that I put this off for so long is that there are some logistical issues with keeping Venus flytraps in dried sphagnum moss, peat. आर यू गेटिंग? स्क्रीन नजर आ रहा है? चलिए जी, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा। The Venus flytrap. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. A second strike in less than 20 seconds, and the fly is doomed. An electrical impulse is triggered, and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains. The ant has finished its meal and resets itself. जी बेटा, तो ये थी एक वीडियो, एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपके साथ शेयर की, और आपने देखा कि उसने किस तरह इंसेक्ट्स को ग्रैब किया और किस तरह इसको डाइजेस्ट किया,
और जब दोबारा वो ओपन होता है तो आपने देखा कि उसका बिल्कुल ड्राई स्टफ आपको नजर आया। तो ये समझ आ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता था। असल में जिस वीडियो को मैं देखना चाहता था, जो मैं क्लास स्कूल में बच्चों को दिखा रहा था, वो इससे और अच्छी थी। परहैप्स वो मुझे मिल नहीं रही। आई थिंक सो, शायद वो है नहीं, पहले वो होती थी। लेकिन चलो, ये भी अच्छी थी। तो और कोई सवाल अगर ज़हन में है तो प्लीज़ पूछिएगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ टेस्ट बड। ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। So here we go now for the taste bud. अच्छा जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो है हेयर पिपिला। हेयर हेयर पिपिला कह रहा हूँ, पिपिला सिर्फ, टंग पिपिला। पिपिला क्या होता है? अगर आप अपने टंग को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो आपको अपना जो टंग है वो थोड़ा रफ नज़र आएगा। इसके ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं। अब वो से एक डॉट को अगर आप देखते हैं, मतलब ये वो डॉट है जो नज़र आ रहे हैं, और इन डॉट्स के अंदर एक 2 डॉट्स के बीच में एक छोटी-सी बम्प्स होती हैं, बम्प टाइप, अंदर डेंट होती हैं, मतलब डाउनवर्ड बेंडिंग होती हैं, और इन बेंडिंग के अंदर लगे होते हैं टेस्ट बड। ये टेस्ट बड लगे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा ज़बान का सरफेस है, जिसको हम पिपिला कहते हैं। देखो, ये पिपिला के ऊपर अगर आप अपनी ज़बान को कभी मिरर में देखें और करीब से देखें तो ये रफ स्मूथ नहीं होता, इसके ऊपर बहुत सारे डॉट दानेदार टाइप होता है। तो ये हमने उसको थोड़ा फर्दर मैग्नीफाई किया, तो इन डॉट्स के बीच में डिप्रेशंस होती है, यानी एक किस्म के बम्प्स होते हैं, और इनके अंदर आप देखते हैं कि टेस्ट बड लगे होते हैं। टेस्ट बड के अंदर क्या चीज़ होती है? मैं अभी आपको दिखाऊँगा। रिसेप्टर सेल्स होंगे इनके अंदर। एक टेस्ट बड के अंदर समझ लो बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं। कितने होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा। ये एक टेस्ट बड को हमने मैग्नीफाई किया है, जस्ट ओनली वन टेस्ट बड को मैग्नीफाई किया गया है, और इस टेस्ट बड के अंदर आप देख सकते हैं बंडल ऑफ सेल्स है, और ये सेल्स है, इसमें फिर कौन सा सेल्स है? ये रिसेप्टर सेल्स है। रिसेप्टर सेल देखे इन्होंने फिर यहाँ से एक सेल निकाला है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। बहुत सारे आपस में ग्रुप है कन्वर्ज होके, यहाँ से वो एक नर्व निकाल के लेके जा रहे हैं। आई मीन मैं इसको थोड़ा-सा रुक जाएँ। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि ये जो नर्व्स हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये ब्रेन की तरफ जाएँगे, और यहाँ देखिए, यहाँ एक पोर है। इस पोर के थ्रू जब हम कोई चीज़ ज़बान पे रखते हैं या च्यूइंग कर रहे होते हैं, चीज़ खा रहे होते हैं, तो सलाइवा के अंदर उसका मिक्स होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ सॉल्युबल ना हो तो उसके टेस्ट का अंदाज़ा फ़ौरी तौर पे नहीं होता। जब वो सॉल्युबल होता है तो वो स्पोर के थ्रू अंदर आता है, और ये टेस्ट बड, यानी टेस्ट बड के अंदर आते होंगे। ये टेस्ट बड ना, इसकी ये वाला किनारा, मैं 1 सेकंड बेटा, इसको थोड़ा फिर बड़ा करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। ये देखिएगा, मैं अब आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। ये वाला देखो, इस टेस्ट बड के 2 किनारे हैं, एक बब की तरफ, एक बाहिर की तरफ। तो जो बाहर वाला साइड है, यूजुअली ये ब्रेन की तरफ इसमें से इम्पल्स, मतलब ये वाला किनारा ये वाला है, यूँ, और ये वाला साइड जो है वो इस तरफ वाला है। तो यहाँ देखो,
जब हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसके जो केमिकल्स होंगे वो यूं अंदर आएंगे, डिसॉल्व होंगे सलाइवा में और इसके अंदर इन होंगे, मतलब इस साइड से इन होंगे। यहाँ टेस्ट सेंसेशन होगी और इसका जो कोड होगा वो दिमाग की तरफ जाएगा कि कौन से केमिकल आ रहे हैं, सोडियम आ रहे हैं, फ्लोराइड आ रहे हैं, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, क्या है। तो उन सब का टेस्ट है वो दिमाग जो है वो डिकोड कर रहा होता है। तो मेजर चीजें क्या है जो आपने याद रखनी है। पहले आप याद रखिएगा कि पेपिला क्या होता है, जबान का अपर वाला सरफेस, रफ सरफेस। एक पेपिला के अंदर बहुत सारे बम्प्स बने होते हैं जिसको एक किस्म के आई मीन पेपिला इस बम्प्स को ही कह रहे हैं, बहुत सारे बम्प्स बने होते हैं जिसको पेपिला कहते हैं, रफ सरफेस ऑफ द टंग के ऊपर। इन बम्प्स के अंदर होते हैं मोर देन 50 और 100 टेस्ट बड। हर टेस्ट बड के अंदर फिर क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं और रिसेप्टर सेल्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं उन केमिकल्स को जो उस फूड के अंदर मौजूद है। ये आपके सामने एक रिसेप्टर सेल उसने बड़ा करके दिखाया है और इसका ये वाला किनारा जो है अगर आप देखें तो वो इस तरफ है और ये वाला किनारा जो है वो इधर के, सॉरी सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, इन्होंने जो बनाया है ये वाला सेंसेशन साइड है, मतलब यहाँ, और ये वाला जो है ये ब्रेन की तरफ, इफ स्टिमुलेशन इज अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। आई मीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। So taste buds are in papilla that are distributed across the tongue. A क्या है? A. A cross section through a papilla showing the distribution of taste bud. ठीक हो गया? सॉरी B क्या है? B a cross section through the, ठीक है B हो गया। C क्या है? A taste bud में दिखाया गया है। और D क्या है? Detail of one chemoreceptor यानी रिसेप्टर सेल। तो बहुत सारी रिसेप्टर सेल्स है, 1 2 3 4 5 6, अभी तो इन्होंने 7-8 को शो किया है लेकिन रिसेप्टर सेल्स हमारे पास बहुत होते हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी फूड आता है तो उसका वो स्टिमुलस जनरेट कैसे करेगा, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी बिगिनिंग से आपको साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ से पढ़ें इसको प्लीज। The tongue is covered in many small bumps or papillae. Each papilla has many taste buds over its surface, जो कि दिखाया गया है। अच्छा, within each taste buds are between 50 and 100 receptor cells, जो मैंने आपको दिखाया है, that are sensitive to chemicals in the liquid that we drink or chemicals from our food that dissolve in saliva. Each chemoreceptor is covered with receptor proteins that detect these different chemicals. Protein से मुराद protein channels. छोटा कर लेता हूँ उसको। अब देखें, ये आपके जो केमोरिसेप्टर्स है ना, इसके ऊपर प्रोटीन चैनल लगे होंगे। लेकिन अगर इसको अब मैं थोड़ा सा इसको फर्दर आपको एक वो कर दूं, हाँ, अब अगर फूड के अंदर सूट, अच्छा बेटा ये थोड़ा सा जो डायग्राम है इन्होंने थोड़ा इन्वर्ट किया है। आई थिंक सो कि इनका ये वाला सिरा जो है ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से ये फूड मॉलिक्यूल्स को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस डायग्राम से यही लग रहा है। तो आप देखिए इसके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है, यानी विलाय बनी हुई है। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा प्रोटीन चैनल होंगे जिससे ये केमिकल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात बेटा? देखो, each chemoreceptor is covered with receptor protein that detect these different chemicals. There are several types of receptor protein, each detecting a different type of chemical and giving us a different sensation. There are 5 tastes: sweet, sour, salt, bitter, and umami, यानी savory. अच्छा जी, chemoreceptor in the taste buds that detect salts are directly influenced by sodium ion. हमारा ताल्लुक इसी से है, सॉल्टी से है क्योंकि हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो टेस्ट सोडियम आयन वाले से लिंक है। These ions diffuse through slightly selective channel proteins in the cell surface membrane of the microvilli. ये microvilli है जो नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर कौन से चैनल होंगे, सोडियम चैनल्स होंगे। These ions diffuse through slightly selective channel protein in the cell surface membrane of the microvilli, and this leads to depolarization of the membrane. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आपने
उसके अंदर पढ़ा था, न्यूरॉन के अंदर पढ़ा था कि सोडियम जब अंदर आते हैं तो वो डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। The increase in positive charge inside the cell is the receptor potential. यहाँ अब एक्शन पोटेंशियल के बजाय क्या नाम देते हैं? रिसेप्टर पोटेंशियल, क्योंकि जो हमारा टेस्ट बर्ड है उसका दूसरा नाम क्या है? एक्शन पोटेंशियल को क्या कहेंगे? रिसेप्टर पोटेंशियल हैज बीन जनरेटेड टू आइडेंटिफाई द टेस्ट। क्योंकि देखो ये जो इस वक्त स्टिमुलस जनरेट हो रहा है ना, ये रिसेप्टर सेल जनरेट कर रहा होता है, और ये जब यहाँ से आगे जाएगा तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जाएगा। बेटा जिस तरह आप लोगों ने ईपीएसपी कहा था साइनैप्स के ऊपर, इसी तरह जब स्टिमुलस के अंदर इंपल्स जनरेट होगा पहली बार तो वो रिसेप्टर पोटेंशियल का नाम देते हैं। फिर इस रिसेप्टर पोटेंशियल की जो आगे प्रोपिगेशन होती है उसको फिर हम एक्शन पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं और इंपल्स का नाम दे सकता है। If there is sufficient stimulation by sodium ions in the mouth, I mean threshold तक पहुंचता है, then the receptor potential become large enough to stimulate the opening of voltage gated calcium ion channels. अब देखो यहाँ सेम वही मैकेनिज्म चल रहा है जो कि साइनैप्स के अंदर चल रहा था। सोडियम आयन अगर ज्यादा आएंगे तो फिर वो वोल्टेज गेटेड सोडियम यानी कैल्शियम को ओपन कर देंगे। कैल्शियम आयंस एंटर द साइटोप्लाज्म एंड लीड टू एक्सोसाइटोसिस। बिल्कुल वही मैकेनिज्म ऑफ वेसिकल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में होता था, कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द बेसल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ बेसल मेम्ब्रेन किस चीज को कहते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मेम्ब्रेन है वो नीचे वाला मेम्ब्रेन इसका बेसल होगा, ये देखिएगा, ये इसका बेसल मेम्ब्रेन है, ये वाला साइड। तो यहाँ हमने क्या किया? आयंस खुलवाए, आयंस करने से कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आने के बाद क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस होगी, और एक्सोसाइटोसिस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होंगे और ये किस में जाएंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाएंगे। तो अगर आप देखें यहीं पे ये बात, दिस स्टिमुलेट कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन टू ओपन, entry of calcium ions stimulate movement of vesicles containing vesicle and release of neurotransmitter by exocytosis. अच्छा, फिर if stimulation is above the threshold, impulse level travel to the brain along the sensory neuron. So this is sensory neuron and this is the postsynaptic membrane. और ये आपका कौन सा सेल है? रिसेप्टर सेल है। तो ये रिसेप्टर सेल है और ये क्या है? सेंसरी सेल्स है। तो ये रिसेप्टर न्यूरॉन नहीं है, रिसेप्टर न्यूरॉन नहीं है, ये रिसेप्टर सेल है जो रिसेप्टर के अंदर होता है, हमारी टंग के अंदर है, यानी टेस्ट बड के अंदर है। तो टेस्ट बड ने यहाँ से सोडियम लिया, सोडियम अंदर आती ही उसने क्या किया? डीपोलराइजेशन कॉज की, उससे कैल्शियम चैनल्स भी खुले, कैल्शियम अंदर आया, न्यूरोट्रांसमीटर जो उसके इस साइड पे लगे हैं वो यहाँ जा रहेंगे, किसमें? रिसेप्टर में, उसमें सेंसरी न्यूरॉन में, वो ब्रेन की तरफ मूव करेगा। तो ये उसकी डिटेल है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं सेंसरी जोन, मतलब ये वाली जगह इन्होंने एक वेलस शो किया है इसने, यहाँ से देखो जो 4 नजर आ रहे हैं इसमें से एक शो किया है, ये सेंसरी जोन है। और इसका जो बेसल मेम्ब्रेन है वो भी कहीं दिखाया गया होगा, साइनेप्टिक वेसिकल है यहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन हुआ, और समझ लो ये वाला जो इसका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है इसको हम बेसल मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं इस वक्त। तो जो सेंसरी जो कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, अब चूंकि ये प्री सिनेप्टिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? रिसेप्टर का पार्ट है, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन को हम बेसल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। तो ये बेसल मेम्ब्रेन है बेसिकली, और इन्होंने इसको शो किया हुआ है। तो रिसेप्टर कैन बी स्पेशलाइज्ड सेल्स और सिंपली द एंड ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन। सो ये कहाँ पे अटैच होगा? सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर अटैच होगा। So the neurotransmitters stimulate in action potential in the sensory neuron that transmit impulses to the taste center. Taste center कहाँ होगा? In the cerebral cortex of the brain, हमारे ब्रेन के अंदर होगा। अब आप जरा सोचिएगा कि इसमें अगर एक वेलस मौजूद है, इस तरह कितने सारे विलाय इसके सरफेस पे होंगे, और हर वेलस के अंदर कितने सारी प्रोटीन चैनलों के अलग अलग आयंस के लिए, और ये तो सिर्फ एक रिसेप्टर सेल है, केमोरिसेप्टर एक ही है, ऐसे 50 केमोरिसेप्टर एक टेस्ट बड के अंदर लगे हैं। तो बेटा मैं बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ, आप इंग्लिश के अंदर देखिए, आपके पास 26 कैरेक्टर है, उनके लेटर्स को आगे पीछे करते हो तो नया वर्ड बनता है, अब सिर्फ 26 से। अब आप देखिए यहाँ कितने केमोरिसेप्टर हैं? 50 से ज्यादा सिर्फ एक टेस्ट बड में है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर हर टेस्ट बड के अंदर कितने माइक्रोवेलाए हैं, फिर माइक्रोवेलाई के अंदर डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स होते हैं अलग अलग आयंस के लिए। अब कौन सा आयन खुलता है, कौन सा बंद होता है, कितने कॉम्बिनेशन में खुलते हैं, कौन सा पहले खुलता है, कौन सा बाद में, तो कितने सारे टेस्ट बनते हैं। यही वजह होती है कि दुनिया में जो टेस्ट है वो एक इन्फिनिट वैल्यू है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस होती है
वो डिफरेंट सेंसेशन से आ रहे हैं और वो जाके ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट पे मिलते हैं जो इसको डिकोड कर रहा होता है। तो यही बात यहाँ, द न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट इन एक्शन पोटेंशियल इन द सेंसरी न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इंपल्सेस टू द टेस्ट सेंटर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अच्छा, when receptors are stimulated, they are depolarized. If the stimulus is very weak, the cells are not depolarized very much, and sensory neuron is not activated to send impulses. If the stimulus is stronger, अब अगर आपने किसी ऐसी चीज को जबान में या मुंह पे रखा है जो कि soluble ही नहीं है, solid है, तो उसका sensation बहुत कमजोर होगा और उसका taste आपको feel नहीं होता। अच्छा, if the stimulus is stronger, then the sensory neuron is activated and transmit impulses to the central nervous system. If the receptor potential is below a certain threshold, the stimulus only causes local depolarization of the receptor cells. मतलब receptor cell तो polarize होगा, लेकिन आगे sensation brain तक नहीं पहुंचेगी. If the receptor potential is above the threshold, then the receptor cells stimulate the sensory neuron to send impulses. Above this threshold, action potential are initiated in the sensory neuron. This is an example of the all or nothing law जो कि आप पढ़ चुके हैं. Neurons either transmit impulses from one end to the other or they do not. As we already seen, the action potential always has the same amplitude. ये भी पढ़ चुके हो. As the stimuli increase in intensity, the action potential are produced more frequently. Frequency बढ़ेगी. The action potential to बस ये वही पुरानी चीजें हैं बेटा. इसमें कोई नई बात नहीं है. तो असल जो इसका सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने याद रखनी है. आपने याद रखना है कि जो हमारी टंग का रफ सरफेस है उसके ऊपर पेपिलाई होगी. पेपिलाई क्या होती है? बम्प्स होती है टंग के ऊपर और इन बम्प्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि तादाद में ज्यादा होती है. मोर देन 50 और 100 टेस्ट बर्ड होते हैं एक पेपिला के अंदर. फिर एक टेस्ट बर्ड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम कैमोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं. तो कैमोरिसेप्टर जो है वो 50 से लेके 100 का एक क्लस्टर होता है जो कि एक टेस्ट बर्ड के अंदर होता है. हर एक कैमोरिसेप्टर के दो एंड होते हैं. एक के ऊपर विलाय होते हैं और एक इसका बेसल मेम्ब्रेन होता है जहां न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन होती है. जो माइक्रोविलाय वाला सरफेस है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट आयंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ ऑफ कोर्स जैसे कि आपने न्यूरोट्रांसमीटर जो आपने एसिटाइल कोलिन पढ़ा था तो उसका भी रिसेप्टर था और उसके साथ प्रोटीन चैनल अटैच होता था. तो पहले वो स्टिमुलस होता था फिर चैनल खुलता था. तो इसी तरह इसके अंदर रिसेप्टर लगे हैं और प्रोटीन चैनल है. जितने मेम्ब्रेन इन्विजिनेटेड होगी, जितना ज्यादा विलाय होंगे, उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन चैनल्स. इसलिए हमारे पास प्रोटीन चैनल की भी तादाद ज्यादा होगी. अच्छा, इन प्रोटीन चैनल पे कोई भी आयन आएगा तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करेगा. ऑफ कोर्स अगर कोई आयन है जो कि या कोई भी फूड पार्टिकल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स है, वो जब सलाइवा में डिसॉल्व होते हैं और वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो वो चैनल खोलते हैं. अब चूंकि इस वक्त हम पर्टिकुलरली सॉल्टी फूड की बात कर रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, तो हम सोडियम की बात करते हैं. तो जब वो रिसेप्टर के साथ सॉल्टी फूड अटैच होता है तो सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ता है. सोडियम अंदर आता है तो डिपोलराइजेशन कॉज करेगा. बाकी स्टोरी आपकी वही है जो आपने पहले पढ़ी थी. सोडियम आयन अंदर आती है, क्या करेगा, इंटरनल सिस्टम ज्यादा पॉजिटिव कर देगा. पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे कैल्शियम चैनल खुलेंगे. कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा. कैल्शियम जो ही ज्यादा होगा तो वो वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे. उन न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि वेसिकल के अंदर बंद होते हैं उनकी एक्सोसाइटोसिस होगी. एक्सोसाइटोसिस में जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि रिसेप्टर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन है. इसके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, उनमें बाइंड होंगे. जब उनके ऊपर बाइंड होंगे तो वैसे ही होगा, सोडियम अंदर आएंगे, एक एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा और ये हमारे ब्रेन की तरफ जाएंगे जहां वो इसका जो ब्रेन का जो सेंटर है वो इसको डिकोड कर देंगे. सो दिस इज द स्टोरी. इसके में इंशाल्लाह ताला मैं जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो कलेक्ट करके आपको yes beta. So this is the end of receptor potential. टेस्ट बर्ड की कहानी थी है और इससे पहले आपने वेनिस फ्लाई ट्रैप भी पढ़ लिया. एक टॉपिक रहता है इसमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस का प्रोसेस. इंशाल्लाह ताला ये हम मंडे ट्यूसडे को वेडनेसडे को फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. अप टिल नाउ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. अगर कोई चीज पूछनी है तो प्लीज पूछिएगा, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ.
क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीथिंग? काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा. यस सर, सब समझ आ गया. चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड. ओके आना. यस सर. चलो, थैंक यू एंड देन सी यू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.